طرح میں نے پہلے کہا یہ کوئی ایک نیا ٹیکس نہیں ہے, یہ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ٹیکس نہیں ہے, یہ پروونشل گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ٹیکس نہیں ہے. لیگل اینڈ کانسٹیٹیوشنل فیڈریٹنگ انٹیٹی ہم جب ریکگنائز نہیں ہوتے تب تک ہم وہ تمام ٹیکسز نہیں دیں گے. ایک قانون نہیں بنا کہ جو گلگت بلتستان میں الکوہل کو لیگلائز کرے. دیٹ از کمپلیٹلی فیک نیوز. یہ گورنمنٹ کی طرف سے بالکل بھی نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گلگت میڈیا نیٹ ورک کے پروگرام مذاکرہ کے ساتھ میں ہوں طاہر رانا. ناظرین, آج کل گلگت بلتستان ریونیو اتھارٹی بل 2022 بہت زیادہ زیر بحث ہے. بہت ساری باتیں پھیل رہی ہیں. اب ان باتوں میں کتنی حقیقت ہے اور کتنا مبالغہ ہے, اسی حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ گلگت بلتستان حکومت کے کوارڈینیٹر ٹو سی ایم یاسر عباس صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں یاسر صاحب. بہت شکریہ طاہر صاحب. تو یاسر صاحب, سب سے پہلا سوال آپ سے یہی ہوگا میرا کہ جو ریونیو اتھارٹی بل ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں, کیونکہ عوام جاننا چاہتی ہے یا عوام کو یہ لگ رہا ہے کہ ان کے اوپر کوئی ٹیکس لاگو ہو رہا ہے. بہت شکریہ طاہر بھائی یہ ایک اپرچونٹی دینے کے لیے. اس حوالے سے بہت سے کنفیوژن ہے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اور آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا بیسکلی مقصد ہی یہی ہے کہ اس کنفیوژن کو دور کیا جائے. سو جب سے چیف منسٹر صاحب خالد خورشید صاحب حکومت میں آئے, ان کا ایک ویژن تھا کہ اس خطے کو ہم کسی طرح ایک سیلف سفیشنسی کی طرح لے جائیں اور فیڈرل ڈپینڈنس کو ہم بیسکلی کم کرتے آئیں. تو اس بیچ میں اسی پروسیس میں ہمیں تھا کہ ہم کسی طرح گلگت بلتستان میں ہم ایسے سٹیپس لے لیں جس سے ہمارا پروونس جو ہے وہ ایک سیلف سفیشنسی کی طرف بڑھے, بیسکلی اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائے ہم لوگ. تو اسی کی ایک کڑی یہ گلگت بلتستان ریونیو اتھارٹی ہے. اب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ کوئی ایک ٹیکس کا میکنزم نہیں ہے, یہ ایک ریونیو کلیکشن اتھارٹی ہے. بیسکلی ایک ادارہ ہے جس کا کام ہوگا وہ گلگت بلتستان میں جتنے بھی ہمارے ریونیو کے سورسز ہیں جو ہم فیوچر میں ایکسپلور کریں گے, جو شاید جو ہمیں لگے گا کہ ان دا فیوچر جو گلگت بلتستان کے لیے ریلیونٹ ہوں گے مختلف سیکٹر سے, تو اس کی طرف ان کو ایک بیسکلی ریونیو کے ایمبٹ میں لانے کے لیے ایک سٹیپ ہے. صحیح ہے. اچھا, آپ نے کہا کہ فیوچر میں جو بھی ریونیو ہوگا اس کی کلیکشن کا ایک طریقہ کار وضع کیا گیا ہے. اگر کلیکشن کوئی بندہ نہیں دیتا, جیسے آج ہی ہوٹل انڈسٹریز کی طرف سے پریس کانفرنس ہوئی اور شدید مخالفت کی گئی اس جو ریونیو اتھارٹی بل ہے اس کی, تو اس صورت میں آپ کا یہ قانون کیا کہتا ہے جسے آپ نے پاس کیا؟ دیکھیے طاہر صاحب, میں ایک چیز کلیئر کر دوں, یہ ریونیو اتھارٹی بل ہے, اگین جس طرح میں نے پہلے کہا یہ کوئی ایک نیا ٹیکس نہیں ہے, یہ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ٹیکس نہیں ہے, یہ پروونشل گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ٹیکس نہیں ہے. میں آپ کے ناظرین کے لیے بیسکلی ان کے لیے ایک بیٹر انڈرسٹینڈنگ کے لیے میں ان کو یہ ہمارے جو بیسک ٹیننٹس ہے اس ایکٹ کے اس کے حوالے سے میں ان کو تھوڑا سا میں ان کو اگر میں سمجھا سکوں. اس کا کام بیسکلی یہ ہے کہ ایڈمنسٹر اینڈ کلیکٹ سچ ٹیکسز, ڈیوٹیز اینڈ ادر لیویز ایز اسائنڈ ٹو دا اتھارٹی بائی دا گورنمنٹ آف گلگت بلتستان. وین ایور, اب یہ نہیں ہے کہ آج کوئی ایسا ٹیکس لاگو ہو چکا ہے جو یہ ایز اے باڈی کلیکٹ کرے گی. مطلب ان دا فیوچر اگر گورنمنٹ سمجھے گی کہ ہم ایک ٹیکس کی طرف ہم جائیں گے تو اس کو کلیکٹ کرنے کا ایک میکنزم یہ دے دیتی ہے. دوسرا یہ کہ اٹ بیسکلی پروموٹس والنٹری ایک ٹیکس کمپلائنس. بیسکلی اس کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرے کہ ہمیں ٹیکس کیوں ضروری ہے, گلگت بلتستان کے لیے کیوں ضروری ہے, اس ٹیکس کا گلگت بلتستان کو کیا فائدہ ہوگا. تیسرا یہ ہے کہ امپلیمنٹ کمپریہنسو پالیسیز اینڈ پروگرامز فار ایجوکیشن اینڈ فیسیلیٹیشن آف ٹیکس پیئر اسٹیک ہولڈرز امپلائیز ٹو امپروو دا کوالٹی اینڈ پرفارمنس آف دا اتھارٹی. بیسکلی یہ ہے کہ یہ اتھارٹی ایز اے ہیڈ کوارٹر کے طور پہ کام کرے گی فیوچر میں اگر ہم ایک ٹیکسیشن کی طرف ہم جائیں گے. کیونکہ دیکھیں کچھ ایسے ٹیکسز ہے جو عوام گلگت بلتستان آلریڈی پے کر رہی ہے, وتھ ہولڈنگ ٹیکس کی شکل میں ہے, آپ کے جی ایس ٹی ٹیکس کی شکل میں ہے. اب پروونشل کچھ سبجیکٹس ہوتے ہیں ٹیکس کے اور کچھ فیڈرل ہوتے ہیں. اب سیل اینڈ سروسز کا جو ایک شعبہ ہے ہم سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان میں اس کا ایک بڑا پوٹینشیل ہے. اس کی اگر کلیکشن ہو جاتی ہے, گورنمنٹ ڈیسائیڈ کر بھی لیتی ہے, تو یہ آپ کے
सूबाई ख़जाने में जमा होती है, आपका रेवेन्यू अथॉरिटी इसको लोकली यूटिलाइज करती है, ये हुकूमत पाकिस्तान के उसमें किटी में नहीं जाती है, ये आपके गिलगित बल्तिस्तान का जो ख़जाना होगा उसमें ये शामिल होता है। अच्छा यासिर साहब, आपकी बात काट रहा हूँ, साथ साथ ये भी बताएं कि ये जो रेवेन्यू है ये किन शोबों से आप लोग हासिल करेंगे फ्यूचर में? अभी आपने जैसे कहा कि अभी फ़िलहाल अथॉरिटी बनी है तो यही होता है कि सबसे पहले हाथ मिलाया जाता है, उसके बाद आगे बहुत सारी चीज़ें होती है। तो अब ज़ाहिर है पास हो चुका है तो यकीनन ये मुस्तकबिल में इम्प्लीमेंट भी होगा। तो कौन से शोबे हैं जिनसे रेवेन्यू कलेक्ट करने का सोचा गवर्नमेंट? ताहिर साहब, आपको पता है टैक्स गिलगित पे एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक रहा है, और ये मैं समझता हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम हक बजानिब है इस हवाले से कि उनको टैक्स उनको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि हमें एक आइनी सूबा है। लेकिन इसका एक दूसरा रुख भी है। इसका दूसरा रुख ये है कि गिलगित बल्तिस्तान में जिस तरह का एक ये इलाका है, यहाँ पे मुख्तलिफ ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ गिलगित बल्तिस्तान के रिसोर्सेस यूज़ होते हैं, जहाँ गिलगित बल्तिस्तान का पानी यूज़ होता है, जहाँ गिलगित बल्तिस्तान की बिजली यूज़ होती है, यहाँ के रोड्स यूज़ होते हैं, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ होता है। और स्पेशली टूरिज़म को मैं एज ए एग्ज़ाम्पल यूज़ करूँगा कि आपके पास यहाँ ऐसे होटल्स बने हुए हैं जो शायद आपके इस्लामाबाद में शायद एक टॉप एक 5 स्टार होटल शायद इतने चार्जेस नहीं लेते होंगे जितना आपका यहाँ पे हमारे सूबे में ऐसे हॉस्पिटैलिटी के एंटिटीज़ मौजूद है जो इतना टैक्स लेते हैं। हम समझते हैं कि अगर हम इसी टूरिज़म को ही टैक्स एम्बिट में ले आए और इस टूरिज़म में हम किसी के ऊपर कोई एक नाजायज़ तौर पे उसको गिलगित बल्तिस्तान नहीं आने के लिए हम कोई फाइनेंशियल लेवी नहीं लगा रहे, हम अपने इलाके के जितने भी रिसोर्सेज है हम चाह रहे हैं कि जितने यहाँ पे फ्री हो रहे यूटिलाइज़ हो रहे, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी के सूरत में हो, चाहे वो पानी की सूरत में हो, चाहे वो दीगर जितने भी हमारे रिसोर्सेज है उनकी सूरत में हो, हम उनको बेसिकली फाइनेंशियल एक लाइबिलिटी उनके लिए हम क्रिएट करें, सो दैट वहाँ से जो पैसा इकट्ठा होता है वो अपने रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को अपलिफ्ट करने में हमें यूटिलाइज कर सके। यहाँ के हमारे आपको पता है एक रिमोट इलाका है, हेल्थ के मसले है, यहाँ पे डिजास्टर एक आपको पता है आजकल बहुत ज़्यादा, बिल्कुल बहुत ज़्यादा लोग सफर कर वर्स्ट एरियाज में आते हैं। उस सवाल बेसिकली ये कि हम उन तमाम एरियाज को टारगेट करें जिससे हम गिलगित बल्तिस्तान के लिए पैसा इकट्ठे कर सकें। तो उसमें मुख्तलिफ सेक्टर्स है, हमारे पास माइनिंग का सेक्टर है, हमारे पास टूरिज़म का सेक्टर है, हमारे पास माउंटेनियरिंग का सेक्टर है, हमारे पास कंस्ट्रक्शन का सेक्टर है। तो लेकिन एक चीज़ मैं क्लियर करूं कि यहाँ आपके ऊपर हमारे गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के ऊपर कोई डायरेक्ट टैक्स नहीं लग रहा है, कोई इनकम टैक्स नहीं लग रहा है, कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लग रहा है। तो ये क्लैरिफिकेशन ज़रूरी है। हम इन फ्यूचर अगर गवर्नमेंट डिसाइड भी कर देती है कि हम टैक्सेस की तरफ जा रहे हैं तो वो वही टैक्सेस होंगे जो प्रोविंस का मैंडेट है, जो पाकिस्तान के दिगर सूबे भी लगाते हैं, और वो उनकी कलेक्शन भी लोकल होती है। लोकल से मतलब ये कि वो पाकिस्तान के ख़जाने में उसको जमा नहीं करते हैं, वो अपने ख़जाने में जमा करते हैं और अपने लिए वो खर्च कर देते हैं। सही है, आपने कहा ये लोकल से लेकर लोकल ख़जाने में जमा होगा तो ख़जाना ज़ाहिर है जब आबाद होगा तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी लगेंगे। लेकिन लोगों का ये भी ख्याल है यासिर साहब कि आप लोकल लोगों से कितना निचोड़ेंगे। आप वफाकी हुकूमत चूँकि जहाँ एक तरफ PSDP के प्रोजेक्ट्स लगा रही है वहाँ पे सुस्त ड्राई पोर्ट है, दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं जो वफाकी हैं वहाँ से जितना भी रेवेन्यू होता है उससे आपको कुछ नहीं दे रहा। नहीं, देखें ना, आप सोस्ट ड्राई पोर्ट की आपने बात की। देखो, पोर्ट्स जो है ना वो एक फेडरल सब्जेक्ट है, चाहे वो गवादर पोर्ट हो, गवादर से जो रेवेन्यू इकट्ठे होता है वो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान को नहीं जाता, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जाता है। कराची पोर्ट है हमारे पास, पोर्ट कासिम, वहाँ से रेवेन्यू जो इकट्ठे होता है वो कराची में या सिंध हुकूमत के कैटी में नहीं जाता, वो आपके फेडरल उसमें जाता है, वो एक फेडरल टैक्स है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि फेडरल टैक्सेस डिफरेंट है, हमारे लोकल जो एक सर्विसेज जो प्रोविंशियल टैक्स है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। बात यह है कि आप फेडरल से तब मांगेंगे जब हम फेडरल को डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करेंगे। जब हम डायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर लेंगे उसमें हम जब ये हमारी एक प्रिंसिपल पोजीशन रही है चीफ मिनिस्टर साहब की कि जब तक आईन पाकिस्तान में आर्टिकल 1 में अमेंडमेंट नहीं होता और हम एज अ लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फेडरेटिंग एंटिटी हम जब रिकग्नाइज नहीं
होते तब तक हम वो तमाम टैक्सेस नहीं देंगे। तो इस वजह से हम फेडरल से कोई ऐसी चीज़ डिमांड नहीं कर सकते जो हम कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहे। आप दूसरी बात की, ये एक पोर्ट ही है जहाँ से हम उनको रेवेन्यू दे रहे हैं। दूसरा, अगर हमारे पास यहाँ पे बड़े हाइडल प्रोजेक्ट्स होंगे जो कि इन फ्यूचर में आएंगे, हमारे पास फॉर एग्जांपल बादशाह दियाबर डैम होगा, हमारे पास बोंजी डैम होगा, जब वो आएगी तो उसका एक अलग मैकेनिज्म है। सही, उसमें मिलेगा हिस्सा? उसको बिल्कुल मिलेगा। वो कश्मीर को मिलता है, वो दिगर प्रोविंसेस क्लेम करते हैं, और वो हम भी बाय लॉ, अंडर लॉ, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन हम उसको क्लेम कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए पहले ज़रूरी है कि वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो और यहाँ से जनरेशन टू द नेशनल ग्रिड वो शुरू हो, जो कि अभी तक नहीं हुआ है। सही। अब हम बात करेंगे होटल एसोसिएशन की। तो होटल्स के अंदर होटल मालिकान से आप जो रेवेन्यू कलेक्ट करना चाह रहे हैं वो किससे चार्ज होगा? क्या गिलगित बल्तिस्तान के लोगों से होगा या जो बाहर से आने वाला टूरिस्ट है उनसे होगा? गवर्नमेंट की एक पोजीशन है अभी, वो ये है कि अब जिस तरह होटलिंग का हमने एज एग्जांपल यूज़ किया है कि होटलिंग में हमारे पास जिस तरह एक्साइज एंड टैक्सेशन का एक लॉ मौजूद है, एक टैक्स ऑन हॉस्पिटैलिटी रिलेटेड, उसका एग्जैक्ट में टाइटल में मेरे जहन से निकल रहा है, उसमें प्रॉपर एक एग्जम्पशन क्लॉज है कि द पीपल ऑफ गिलगित बल्तिस्तान विल नॉट पे एनी टैक्स इन दिस इंडस्ट्री। ठीक है, चाहे वो होटलिंग हो या दूसरे भी हो। सो प्रॉपर एग्जम्पशन क्लॉज है लोकल के हवाले से, और उसमें लोकल्स इस चीज़ से बरी ज़िम्मा होंगे। अच्छा, लोकल्स बरी ज़िम्मा होगा। साथ साथ ये भी बताएं कि एक और बात भी आज बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस है कि आपने इस बिल के अंदर शराब के लाइसेंस को आम कर दिया। शराब का लाइसेंस कोई भी ले सकता है और उस पे तमाम राणा साहब ये बिल मेरे पास मौजूद है, आप ये देख ले। इसके अंदर आप इस तरह का कोई चीज़ अगर आपको मिलेगी तो ये दोबारा मैं खुद इसको वापस लेके चला जाऊंगा और रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको रिकंसीडर जाए। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बताता हूँ कि सोशल मीडिया में ये चीज़ क्यों फैली है और उसकी असल हकीकत क्या है। अब तमाम प्रोविंसेस में हमारे पास पाकिस्तान के जिधर तमाम प्रोविंसेस में हमारा जो एक नारकोटिक्स का जो डिपार्टमेंट होता है वो एक्साइज एंड टैक्सेशन कंट्रोल करता है। एक्साइज एंड टैक्सेशन के उसमें आता है, अंडर में आता है, उसके सेक्रेटरी के अंडर में। तो हमारे जो एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट है उन्होंने एक समरी मूव की है कि रूल्स ऑफ बिजनेस में चेंज, एक तब्दीली लाई जाए और नारकोटिक कंट्रोल का जो एक वो है शोबा है वो हमें दी जाए। अब नारकोटिक कंट्रोल को ये लोग इस चीज़ से कंफ्यूज कर रहे हैं कि यार खुदा न खास्ता कोई गिलगित बल्तिस्तान में जो एक शराब की सेल एंड परचेज को लीगलाइज हम कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि शराब के हवाले से, अल्कोहल के हवाले से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, हमारे पास प्रोहिबिशन ऑर्डर 1979 है जो भुट्टो साहब के दौर में गालिबन एक प्रॉपर लॉ बनी थी जिसमें लाइसेंसेस जो है वो सिर्फ नॉन मुस्लिम्स को मिलती है और ऐसे स्पेसिफाइड एंटिटीज जिन्होंने उस लाइसेंस के लिए पहले से अप्लाई किया होता है, जिसमें आपके 5 स्टार होटल्स हैं पाकिस्तान में और कुछ हमारे क्रिश्चियन और माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं। हम जो इस जो सोशल मीडिया में कंफ्यूजन फैला है, बेसिकली हम एक्साइज एंड टैक्सेशन के नोमेनक्लेचर में हम तब्दीली चाह रहे हैं और नया नोमेनक्लेचर जो हम चाह रहे हैं वो ये होगा कि एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट एज एक्साइज टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स डिपार्टमेंट, सेक्रेटरी एक्साइज एंड टैक्सेशन ने इसको प्रपोज किया था। इसके बाद ये डिपार्टमेंट जीबी एक्साइज एक्ट को इम्प्लीमेंट करवाएगी, जीबी होटल जो। अच्छा, इसमें एक छोटा सा सवाल है वो क्लियर करते चले कि ये जो समरी थी या ये जो एक्ट है इसके हवाले से एक्साइज एंड टैक्सेशन की तरफ से ये पुटअप हुआ असेंबली को और असेंबली ने इसको पास किया? नहीं, ये असेंबली से नहीं हुआ था, रूल्स ऑफ बिजनेस में अमेंड करने को कहा गया था। और जो मैं समझता हूँ कि सोशल मीडिया में ये चल रहा है, ये डिसइंफॉर्मेशन है। अच्छा, कानून नहीं बना कोई ऐसा कोई स्पेसिफिक कानून नहीं बना कि जो गिलगित बल्तिस्तान में अल्कोहल को लीगलाइज करे। दैट इज कंप्लीटली फैक्ट न्यूज। ये गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल भी नहीं है। ये पता नहीं किस तरह ये सोशल मीडिया में पहुंच गया और ये मुमकिन भी नहीं है। और ये ऐसी पॉसिबल लेजिस्लेशन गालिबन हमारे मैंडेट में भी नहीं है कि हम आज डिसाइड करें
कि गो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लीगलाइज अल्कोहल इन गिलगित बल्तिस्तान, वो ऐसा नहीं है। हमने सिर्फ रूल्स ऑफ बिजनेस में अमेंडमेंट मांगा है। इससे कबल क्या था यासिर साहब, इससे कबल भी कोई इस तरह का काम कर रहा था गिलगित बल्तिस्तान में? इससे कबल जो था ना, इसकी जरूरत क्यों पेश आई? नहीं, इसकी इसलिए पेश आई कि नारकोटिक कंट्रोल्स का डिपार्टमेंट जो है ना, इसको सिर्फ आपको अल्कोहल के साथ लिंक नहीं करना चाहिए। अल्कोहल उसका एक ही कंपोनेंट है, ठीक है। लिकर फॉर्मेशन लाइसेंसिंग ये उसका एक वो है। हमारे इलाके में ड्रग अब्यूज का एक आ रहा है और मिस यूज ऑफ ड्रग्स के हवाले से चीज़। खैर ड्रैप एक अलग इदारा है, लेकिन जो हमारे उसको क्या कहते हैं, लॉ को लाने का मकसद, रूल्स ऑफ बिजनेस में चेंज का मकसद ये था कि हम पॉलिसी हम बना सके रिलेटेड टू प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग एंड ट्रैफिकिंग ऑफ नारकोटिक्स। हमारा सूबे में क्लियर वाज़ेह पॉलिसीज मौजूद हो, और साथ साथ में हम एक्साइज एंड नारकोटिक्स जो पुलिस स्टेशन होते हैं जो तमाम सूबों में फंक्शनल है, हम उनको ऑपरेशनलाइज करने की तरफ जाए, और साथ साथ में हम फेडरल प्रोविंस के साथ कोऑर्डिनेशन का एक नारकोटिक्स के हवाले से एक मैकेनिज्म बनाए, जिससे हम उनके साथ फेडरल के साथ नारकोटिक्स के हवाले से इन लिएज़ॉन रह सके। सही है। अच्छा, साथ साथ इसका भी जवाब दें कि आप कोई भी होटल आपसे लाइसेंस ले सकता है, और क्या इसकी आड़ में बहुत सारे लोग, जाहिर है यहाँ लोकल्स में भी ये चीज़ फैलाएंगे, आपके बच्चे मेरे बच्चे यहाँ रहते हैं, इससे मुतासिर नहीं होंगे? नहीं, ये लॉ क्लियर है। देखिए, ये लॉ कोई प्रोविंशियल लॉ नहीं है, फेडरल लॉ है, तमाम प्रोविंसेस में भी है, और ये हमारे सूबे में भी अभी ड्राफ्ट जो है वो शायद नेक्स्ट सेशन में असेंबली में आए। इसका बेसिकली मकसद, जिस तरह मैंने पहले कहा, कि रेगुलेट करना है, बेसिकली पॉलिसीज़ लाना है, और नारकोटिक्स और हमारे जितने भी उसके रिलेटेड चीज़ें हैं उनको हमने कंट्रोल करना है। अब देखें, अब्यूज़ ऑफ लॉ होता है, हर माशरे में होता है, मिस यूज़ ऑफ लॉ भी होता है, लेकिन हमारा काम है कि एक मैकेनिज़्म दे दे और उसके ऊपर हम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाए। अगर आप कोई लिकर स्टोर खोलना चाहता है तो उसके बेसिक टेनेंट्स है वो ये है कि सिर्फ नॉन मुस्लिम जो है बरादरी से हमारे जो भाई है वो इस चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर उसमें अगर कोई मुस्लिम इस चीज़ का लिकर स्टोर खोलना चाहता है तो उसको कानून और आइन इसकी इजाज़त नहीं देता है, तो वो इस चीज़ को नहीं खोल सकता है। तो अगर कोई इस चीज़ का मिस यूज़ करे तो फिर जाहिर सी बात है इस लॉ के अंदर वही मैकेनिज्म होगा कि हम उनको किस तरह रेगुलेट करें और हम इस चीज़ का मिसयूज़ को किस तरह प्रिवेंट करें। अच्छा यासिर साहब, आपकी हुकूमत ने हाल ही में जो एक फैसला किया है गंदम के कीमतों में या आटे की कीमत में इजाफा, साथ आप रेवेन्यू अथॉरिटी बिल भी पास कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे फैसले सामने आ रहे हैं जिसकी वजह से अवाम एहतजाज की तरफ जा रही है, और बहुत ज़्यादा शायद अवाम की तरफ से अगर शदीद एहतजाज होता है, ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे? आपका ये जो आपके कुछ इक़दाम हैं रोल बैक करेंगे या इन पे आप डटे रहेंगे? नहीं, मैं समझता हूँ कि अवाम भी अभी बहुत बाशऊर हो चुकी है। उनको पता है कि दुनिया भर में इन्फ्लेशन का एक वेव है, और गवर्नमेंट जो है ना, एट द एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट अवाम का ही है ना। अवाम ने ही गवर्नमेंट की तरफ देखनी है और गवर्नमेंट ने अवाम की तरफ देखनी है। और इन्फ्लेशन का जो एक अंडरस्टैंडिंग है वो खाली पाकिस्तान में नहीं है, इसका एक वेव ग्लोबल चल रहा है। जो गंदम पाकिस्तान जिस रेट पे ख़रीद रही है, आज आपको पता है डॉलर की रेट आसमान को छू रही है। तो इस वजह से आपकी अशियाए खुर्दनोश के जितने भी चीज़ें हैं वो बेसिकली बढ़ रहे। तो अब हमारे जो सब्सिडी का अमाउंट है क्लोज टू 8 बिलियन, अब हम उसी रेट अगर हम चले तो हमारे पास क्वांटिटी तो कम आएगी, तो गंदम का शॉर्टेज होगा। सो इन ऑर्डर टू मीट कि यार हमारी क्वांटिटी बरकरार रहे, हमें इतनी ही बोरियां मिले जितना हमारे गिलगित बल्तिस्तान का डिमांड है, तो उसमें तो हमें इसी रेट के साथ थोड़ी सी ट्विकिंग करनी होगी। और ये देखें ना, 400 या 500 वाला रेट कितने अरसे से चल रहा है, ठीक है। इसमें एक रिवीजन हो तो आवाम को भी चाहिए कि इसमें हुकूमत के साथ कोऑपरेट करें, और बेसिकली इस चीज़ को समझ लें कि जिस सब्सिडी अमाउंट में जिन पैसों से हम गंदम खरीदते थे, आज उसका कॉस्ट जो है वो पहले से बहुत इंक्रीज कर गया है, इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया यासिर साहब, आपने वक्त दिया। तो नाजरीन, हमने यासिर अब्बास साहब से जो कि कोऑर्डिनेटर टू सीएम हैं उनसे गुफ्तगू की, और जो बातें गर्दिश कर रही थी या जो ज़ेर बहस थी, इस हवाले से हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है वो आप तक पहुँचाया।